morning students, welcome back. We are starting with our computer subject lesson number 5. Creating web page using your HTML. See, this chapter is a continuation of your lesson number 4. Our chapter number 4 was introduction to my HTML. But here it is continuing means we will be learning tags in this chapter. In our last chapter we learned how to create HTML document, how to save it, how to view it and how to open it. This kind of things we have seen. In our today's video, we are going to see what are the tags which are used to create my HTML pages. Okay. So, very first is adding header. Adding header means we are going to add some sort of headings. Headings कैसी होती है? Bold. Bold होती है, बड़ी होती है. So those are my header tags. Here I have written HN. N indicates some sort of numbers. Here I am having some sort of range from 1 to 6. Only 1 to 6 values are there. In place of N, I can put this kind of values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not above that. If you will put 7, so it will not means it will not going to accept it, as we have seen. It doesn't give error. Means it will not give error. It will execute, but the pattern will be different because H7 आपका कोई tag ही नहीं है and आपने use कर लिया है तो वो कुछ अलग ही बताएगा या normal text की तरह print करेगा, heading के साथ print नहीं करेगा. So how we are going to write my H tag? So H1, the very biggest tag I can say or the biggest size for the heading is H1. Then I can write, suppose I want to print like this is document. Then close. See, I am closing my H1 tag because header tags are my we can say container tag. It requires opening as well as closing. So I can use H2 also. H2 will have little less size compared to my H1 tag. Okay. Then likewise I can use H6. This is my header tag. Then next tag which we are going to see over here is paragraph. What is paragraph? Paragraphs are the things which used to display the things in a paragraph manner. Means it will display little tag on the very first line. So P tag is used for adding paragraph on my web page. It is again a container tag, means it will require a closing tag as well. Clear? Means I will open my P tag and I can write a paragraph. Then I can close the P tag. Whatever is there inside your opening and closing of your P tag will be treated as a paragraph and will be displayed on your web page when you will execute it. Okay? Then next we are going to see adding breaks. Breaks are the things. Means suppose I have already said the HTML runs in a line-wise manner. It doesn't jump. Okay? So this is web page. Then next line I want this is my demo code. So here I have stopped, means I have given a break, means I have set my Internet Explorer to come down to the next line. For doing this kind of thing, I require a BR tag. R could be capital, R could be small, B could be capital or B could be small because it is not at all my case sensitive language. So this will give me the break. I will have to write BR tag over here. So whenever it will reach over here, it will see that BR tag is there. So I have to move to the next one. Clear? So BR is used just to give a break to my line. Otherwise, अगर मैंने नहीं लिखा होता, so it would come in the same line. It would have come in the same line. Now, next topic which we are going to see is drawing lines to my web page. Makes lines
or the code. Code is difficult. And one more thing I am having, that is size. Means the thickness I can adjust of this line. And HR tag is my empty tag, so it will not require any closing tag. Here, BR tag was also my empty tag. Now, for this video, the last tag which we are going to see is my font tag. What is the basic use of font tag? Font tag is used for formatting my text. Means I can change the writing style, writing size and writing color of my text. So how to do that? I can write my font tag. Then inside your font, I can specify some sort of attribute. Before closing this angle, I can specify the face. With the help of face, I can specify the name of the font which I want. Suppose Arial I have specified. So whatever I will write will be displayed in my Arial font. Then second attribute is size. So it will increase or decrease the size of your font or the text. Then last attribute is color. So it will give the color. Okay, then you have to write your text and close your font tag. So whatever is there in between your font, it will print in the attribute which you people have specified. This all are the things which we are going to see in today's video. See class, firstly I will be writing the basic structure of HTML. HTML, head, title, then under title you can write anything like demo. Okay, so demo will be printed under my tab. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी. ओके, ये हर प्रोग्राम में होगा ही होगा. ओके, कुछ याद नहीं आ रहा है. यहाँ पे हम एक चीज भूल गए हैं. टाइटल क्लोज करने के बाद हमें हेड क्लोज करना है. ओके, ये आपका कॉमन बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है. मीन्स ये आपके हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होगा ही होगा. HTML हेड टाइटल, HTML head title, then your title, ending head. Then we will start with body tag. Now we are going to learn our header tag first, as we have discussed in the video. Our header tag has H1, H2, 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 H3, H4, H5 and H6 sizes. Okay. So, I am firstly writing with the help of H1 tag. This is my biggest header. Okay, and I am closing my H1 tag because it is a container tag. Okay, first I am just doing this tag, then ending body because body latest है. Then end your HTML. Now, अब हम इसके आगे जो भी प्रोग्राम करेंगे सब इसी में एडिटिंग होगा. ठीक है. So kids, I am saving this file on my desktop. Save as. On my desktop I said I will be saving with the extension of .html. Clear? File का नाम and .html is my extension. Suppose I am writing trial .html. Click on save. Now I will minimize this notepad screen. Minimize किया है. See here. Trial has come. Open it. You have seen that it is like in a bigger font.
नाउ फिर से हम मिनिमाइज किए हैं लैपटॉप मीन्स हमारे नोटपैड को. अब हम H2 लिखेंगे. कॉपी एंटर. ओके. So now this time in place of 1 I am typing 2. अभी आपको डिफरेंस खुद दिखेगा 2. ठीक है. अब हम इसको करेंगे कंट्रोल S. सी मैंने एक नया लाइन ऐड किया है, दैट इज वाई आई एम सेविंग इट अगेन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल S बटन. नाउ आई विल क्लिक माई आउटपुट स्क्रीन. ठीक है. अब वो तो वही दिख रहा है, तो हम इसको करेंगे रिफ्रेश. कुछ डिफरेंस दिखा. दिस इज वॉज माई H1, दिस इज माई H2. समझ में आ गया आप लोगों को. ये डिफरेंस है, दोनों भी बोल्ड है पर साइज में दोनों के डिफरेंस है. अब हम एक और डाल देते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाए. कंट्रोल V. सो अब हम कर देते हैं इसको 4. दिस वुड बी ऑल्सो 4. अगेन कंट्रोल S एंड देन सी द आउटपुट. रिफ्रेश करेंगे आउटपुट को F5 बटन की हेल्प से. क्लियर? एवरीबडी सीन. सो दिस इज योर हेडर टैग. अब आप ये नोटिस करेंगे कि आपका ये हेडर टैग सिर्फ 6 तक ही वैलिड है. अगर आप बोलेंगे कि मैं तो 7 भी डाल के कर सकता हूँ, तो डालिए 7 एंड यू विल सी कि आउटपुट नहीं आएगा वैसा. एरर तो देता नहीं है हमारा HTML. इट डजंट गिव मी एरर फॉर एनी ऑफ द मोमेंट. ओके. देन रिफ्रेश. बिल्कुल उसने उसको हेडिंग जैसा ट्रीट ही नहीं किया, नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया. समझ में आया? इसीलिए आपको 6 के आगे नहीं जाना है या 1 के नीचे नहीं जाना है. नाउ लेट अस मूव विथ अदर टैग. सो आई एम रिमूविंग दिस हेडर टैग. दो जो डाल दिए हमने वो मैं थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ. अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसी की हेल्प से आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ टैग. ओके क्लास. So I will write one paragraph. I will add a P tag. नीचे का मैंने सेम रखा है, ऊपर थोड़ा सा एडिटिंग कर रही हूँ. ओके. हेलो, दिस इज माई पैराग्राफ टैग. ओके. अब हमारा P क्या है? कंटेनर टैग है, तो आई नीड टू क्लोज इट. कंट्रोल प्लस S. किड्स आपको 100% समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे. अगेन आई एम रिफ्रेशिंग. सी हेलो, दिस इज माई पैराग्राफ टैग. इज इट क्लियर? इट हैज ट्रीटेड एज अ पैराग्राफ. क्लियर? नेक्स्ट, let us add some more thing. Next tag we are going to see. Next tag which I am going to see is my break tag. Okay. So अब हम break कैसे डालेंगे? Without any tag I am writing something. This is to demonstrate you all regarding brick. अब मैं लिख रही हूँ डॉट 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 BR. अब आगे लिख रही हूँ टैग. कंट्रोल प्लस S एंड देन सी द आउटपुट. मैं आपको एक ही में दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने हैं. क्लियर? देखिए यहाँ पे दिस इज टू डेमोन्स्ट्रेट यू ऑल रिगार्डिंग ब्रिक डॉट 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 डॉट. फिर मैंने क्या लिखा था? BR का मतलब होता है ब्रिक लगा दो. उसके बाद लिखा था मैंने टैग. तो टैग मेरा कहाँ आया? नेक्स्ट लाइन में. ठीक है. बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हमने अभी तक 3 टैग्स पढ़ लिए हैं. हमने फर्स्ट टैग पढ़े हैं हेडर टैग, जो हेडिंग के लिए यूज होगा. सेकंड टैग हमने पढ़ा है पैराग्राफ टैग, जो कि पैराग्राफ्स डालने के लिए यूज होगा. कि पैराग्राफ मतलब वो सेम पैटर्न में प्रिंट करेगा जिस पैटर्न में आपने उसे लिखा है. थर्ड चीज हमने पढ़ी है ब्रेक टैग, विच इज यूज टू ब्रेक, मीन्स इट यूज टू मूव योर कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. क्लियर? नाउ we are going to move towards our next tag, which is
See class, before that I would like to tell you all, break is my empty tag, means I don't have to give its ending or the closing. Clear, मैंने /br नहीं लिखा, ठीक है. अब हमारे पास सेम एक और टैग है जो कि एम्प्टी टैग है, विच इज लाइक हॉरिजॉन्टल रूल HR, ठीक है. इसको भी एंडिंग नहीं लगती है, ठीक है किड्स. हम इस टैग को इसके एट्रीब्यूट के साथ पढ़ेंगे. एवरीबडी क्लियर विद द कंसेप्ट? हम इसको बिल्कुल इसके एट्रीब्यूट के साथ पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए मैं सिर्फ HR लिख रही हूँ और इसका आउटपुट हम चेक करते हैं. मेरा नीचे आउटपुट भी खुला हुआ है, नोटपैड भी मिनिमाइज है और रिफ्रेश किया. रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे स्क्रीन पर आई हैव गॉट वन हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स विच हैज गिवन सेक्शन ऑन माई स्क्रीन. Clear? Now there are some attributes of my HR tag. Basically there are two attributes, one is size and one is my color, means I could change the color of my HR, means मैं लाइन का कलर चेंज कर सकती हूँ. COLOR, कलर की स्पेलिंग आप लोग ध्यान से दीजिए, यू नहीं आता है. इक्वल टू, सपोज ना आई वॉन्ट रेड, सो आई हैव यूज डबल कोट. डबल कोट आपका स्पेशल सिंबल है और ये स्पेशल सिंबल मैं शिफ्ट बटन दबा के डबल कोट लिखती हूँ. सिंगल कोट 2 बार नहीं डालती हूँ. समझ में आ रहा है? अगर सिंगल कोट डालोगे 2 बार तो एरर आएगी, मीन्स आउटपुट वैसा नहीं आएगा. एक बार हम रन करके देखते हैं. रिफ्रेश करेंगे, लाइन का कलर हो गया है रेड. सो आपने डिफरेंस देख लिया कि HR के अगर हम बिना एट्रीब्यूट के लिखते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल आ जाता है. अदरवाइज अब एक काम करके बता रही हूँ मैं आपको, मैं सिंगल कोट 2 बार डालती हूँ, 1 2, ठीक है. ये सिंगल कोट डाला है मैंने, 1 2, Control S. Now when I will see my output, so you will see a major difference. Although I have added the color, but it has not recognized as a, means it has not understood कि what you have specified because of this problem. ये अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको खुद समझना पड़ेगा. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपके HTML का. ड्रॉबैक बोलिए, प्रॉब्लम बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर ये आपके HTML का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है. आपको एरर नहीं पता चलती है, आपको खुद ढूंढनी पड़ती है. टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टाइटल की स्पेलिंग गलत लिख जाती हूँ एंडिंग करते समय और Control S कर दिया मैंने, मीन्स इट इज सेव्ड, एंड व्हेन आई विल सी नाउ माई आउटपुट यू विल सी नथिंग बिकॉज एवरीथिंग गॉन ओवर माई टैब. क्योंकि मैंने क्या बोला था, टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे सब कुछ टैब में आएगा. वो अब एंडिंग टाइटल ढूंढ रहा है जो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो वो सब कुछ क्या कर रहा है, टाइटल ही समझ रहा है और सब कुछ एवरीथिंग इट इज बीन टेकन एज अ टैब, ठीक है. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं है. देन आई सेड कि इसका एक और एट्रीब्यूट है लाइक साइज इज इक्वल टू 45. Control plus S, F5C. थिकनेस बढ़ गई इसकी, इसे बोलते हैं साइज. क्लियर? थिकनेस बढ़ाने के लिए हमने कौन से एट्रीब्यूट की लगी, हमें लगा साइज. समझ में आया? मैंने आपको HR टैग के दोनों भी एट्रीब्यूट्स पढ़ाए. HR टैग का आप एक काम करिए, जिस टैग के एट्रीब्यूट है आप टेबल बना के लिखिए. मीन्स HR टैग इज हैविंग 2 एट्रीब्यूट, वन इज कलर, वन इज साइज. क्लियर क्लास? इसके पहले के अभी हमने जितने भी टैग पढ़े उनके एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है 2, पर वो हम बाद में पढ़ेंगे, एक साथ जंप नहीं करेंगे. नाउ वी हैव लर्नड रिगार्डिंग आवर HR टैग. नाउ समथिंग means you people have learned regarding editing. Okay, so editing में क्या होता है, हमने जो लिखा है हम उसका टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, उसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है. इसका मतलब होता है आपका एडिटिंग. अब एडिटिंग यहाँ पे पॉसिबल कैसे होगी? इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर फॉन्ट टैग, ठीक है. मैंने फॉन्ट टैग लिखा. अब फॉन्ट टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी लगता है.
बिकॉज क्या है, ये मेरा कंटेनर टैग है। अब आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई सेंटेंस लिखेंगे जो आपको एडिट करना है, मीन्स जिसको आपको फॉर्मेट करना है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई फॉन्ट टैग। अब इसको मुझे एडिटिंग करना है। टेक एन एग्जाम्पल, मुझे इसका कलर आना चाहिए ब्लैक। सॉरी, ब्लैक तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अभी फिलहाल आप बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आएगा वो देख लेते हैं हम एक बार रिफ्रेश करके। F5 बटन आई हैव प्रेस्ड, नॉर्मल दिख रहा है, अभी फिलहाल नॉर्मल दिख रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई फॉन्ट टैग, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट जैसा आया है। अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो चेंज कैसे होगा, हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए फॉन्ट यहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉन्ट टैग जहाँ से स्टार्ट किया है, स्पेस, फॉन्ट स्पेस। सबसे पहला एट्रीब्यूट इज कलर। Suppose I want yellow color, I could write yellow. Control plus S, एक एक एट्रीब्यूट लिखेंगे और चेक करेंगे हमारा आउटपुट, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। क्लियर विद द कलर, येलो हो गया अपने आप। अब हम बढ़ाते हैं इसकी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है साइज इज इक्वल टू सपोज 20। ओके, कंट्रोल प्लस एस, रिफ्रेश करिए इसको, बढ़ गया, बड़ा दिख रहा है अभी, मतलब बड़ा किस एट्रीब्यूट से हुआ, साइज एट्रीब्यूट से बड़ा हुआ, कलर चेंज हुआ कलर एट्रीब्यूट से। समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे गैप दिया है 1 स्पेस, और पर यहाँ कोई स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देन 1 मोर स्पेस। अगर मुझे राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है तो मेरे पास एट्रीब्यूट है फेस। क्या है एट्रीब्यूट? फेस इज इक्वल टू, अब आप किसी भी फॉन्ट स्टाइल का नाम ले सकते हो। अब हमें फॉन्ट स्टाइल का नाम एकदम मुंह ज़बानी याद नहीं होता है, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेमोराइज द थिंग्स। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन फॉर्मेट टैब, देन आई एम गेटिंग फॉन्ट। ओके, with the help of font, here I am getting all the fonts which are available on my PC. I am getting each and everything. Okay, so I could take any of the font, okay, and do Control plus C. What I did, I selected the font and I did Control plus C. Okay, and I did cancel करेंगे इसे और यहाँ पे करेंगे paste और डबल कोट। ठीक है, फेस इज इक्वल टू डबल कोट, आपके फॉन्ट का नाम डबल कोट। मैंने टाइप नहीं किया है क्योंकि अगर मैं टाइप करूंगी और मेरे से एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसे नहीं समझेगा। What I did, I had gone in my format tab. Under my format tab, I have gone in my font. In my font tab, I have got the correct, means I did this and I did Control plus C and it cancelled and pasted over here with the help of Control plus V. Now I am saving it and now I will run my program. Refresh. See, writing style has been changed. So my font tags have how many attributes? My font tag have 3 attributes, namely color, which is used to change the color, size, which is used to change the size, face, which is used to change the writing style. Clear? ये एंगल कम क्लोज हुआ है, यहाँ सेंटेंस जिसको फॉर्मेट करना है, देन क्लोज योर फॉन्ट टैग. So today I am stopping over here. In our next video I will continue in our forward part.